TCS BPS hiring freshers of B Pharma, Commerce and Science graduate apply now. So this is my second video. In this video, I will just explain about the syllabus and the registration part of the BPS. ठीक है ना? The last video I already covered the summarized part, all the detail about the TCS BPS hiring freshers now. So in this video, 2 points I will cover, only the syllabus and the registration part. So very good morning to all of you. I am Sumit Jain, and I'm really welcome you in my channel Sumit Jain, and this is my also my infokhazana.com. This is my website. This information also available in this website now. So now let's start. TCS BPS hiring freshers. B Pharma, M Pharma, BCom, BA, BFF, BBI, BBA, BBM, BMS or BSc IT General and CS BCA, BCS Art and Commerce Science graduation apply now. So this in this case, this is a 2022 batch. Now this is only for the 2022 batch. So it will be this is a fresher student, only for this fresher students. They can apply it. ठीक है ना? This is a last date जो है 7th January 2020 है. एंड आफ्टर डेट 26 जनवरी को इसका एक टेस्ट होगी. इसमें जो सिलेबस आएगा मैं उसके बारे में बात करूंगा. ठीक है ना? वो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा. क्लियर है? सो डिटेल अबाउट द पास आउट स्टूडेंट्स. Registration date 7 January 2022, test date 26 January 2022 and to be announced post test results. ठीक है? सो नाउ सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस की बात हो रही है यहाँ पे. तो टेस्ट प्रोवाइड TCS ION मतलब NQT is the test provider for TCS BPS fresher hiring process. This is a test duration is 65 minutes. In this durations, 3 important section will be comes. First, numerical ability. Second will be verbal ability, and third will be reasoning ability. Now, one by one, I will just I will inform how much questions will become and how much durations now. ठीक है? कितने questions आएंगे और क्या durations लेकर हर section का मैं बताऊंगा आपको. Number of questions, numerical ability 26 question होंगे and durations over 20 minutes. Only 20 minutes. Numerical questions को only 20 minutes दिया गया है यहाँ पे. सबसे important point है verbal ability 24 questions, 20 duration per sections. ठीक है? Reasoning ability 30 questions and 25 minutes. It means 80 question will be comes and only duration will be 65 minutes. Is it very clear? अब now section wise में बताता हूँ कि किस किस में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा. फर्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटीज. ठीक है? 26 क्वेश्चन जिसमें 40 मिनट बोला गया है. सॉरी 26 क्वेश्चन 20 मिनट. सॉरी हाँ यहाँ पे गलत लिखा है. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क्स, permutations, combination, divisibility, bot and streams, LCM, HCF, equations, prime products, simple and compound interest, probabilities, profit and loss, geometry, mixture and allegation and data interpretation. Very simple. Topic is very simple now. Second one is verbal ability. Fill in the blanks, error corrections, sentence completion, sentence arrangement, sentence ordering, passage ordering, reading comprehensions, word selection, synonyms, spelling, error identification, best express synonyms and meaningful sentence. So this is a very important point here, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अगर MP की बात करें तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं हिंदी मीडियम से होते हैं और उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती है. सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इट इज़ वेरी गुड, वो आप लोग अप्लाई करें. एंड नेक्स्ट वन इज रीजनिंग एबिलिटी, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेट्स. So reasoning ability topics क्या दिया? Number series, blood relations, coding decoding, edges, data sufficiency, meaningful word creations, setting arrangement, setting arguments, odd man out, distance and directions, statement and conclusion, analogy, symbols and notation. So many points are covered are here in reasoning sections. So it is very important to all of you that if 3 topic is very important, if you are good in this 3 section, so definitely you will easily pass from this test. ठीक है ना? And you can next point जो रहेगा आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू सेक्शंस रहेगा, आप इजीली वहां पे चले जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन में आप रीच होंगे. ठीक है? नाउ अब मेरा जो मेन पॉइंट था, क्या करना है अपने को, हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन प्रोसेस. ठीक है? लॉग ऑन TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, क्लिक हियर.
ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लिक किया, बटन दबा रखा है, रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द TCS BPS फ्रेशर हायरिंग प्रोसेस, बिकॉज आप BPS के लिए कर रहे हैं तो आपको BPS को ही क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको पूरा सबमिट, पूरा फिल करना होगा एंड देन सबमिट करना होगा नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलिए, दिस इज साइट nextstep.tcs.com कैंपस, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ पे हम क्लिक कर रहे हैं, वेलकम अब्रॉड TCS नेक्स्ट स्टेप, यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, कैंपस बस एंड बहुत सारी चीज दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, सामने जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी है, आप कैटेगरीज, दो कैटेगरीज है, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एंड एक BPS मतलब बिजनेस प्रोसेस सर्विस की, बिकॉज आपका जो टारगेट है BPS को रिलेटेड है, सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको BPS को ही क्लिक करना है। सो आई एम क्लिकिंग द BPS सर्विस नाउ, ठीक है। दिस इज BPS फॉर्म नाउ, प्लीज नोट TCS नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव is available in the India geography application from other countries will not be taken into account, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ कह दिया नेम, तो टाइटल्स में आपको लिखना मिस्टर या कुछ होगा, वो आपको लिखना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर सरनेम, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, मेल फीमेल है जो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है, ईमेल आईडी जो भी है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, मोबाइल नंबर जो भी होगा आपको करना है। फिर इंस्टीट्यूशन नेम, किस इंस्टीट्यूशन नेम में आप पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं करंट में, आपको उसकी डिटेल देनी होगी, कौन सी क्वालिफिकेशन से है ना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी सब इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भरना है। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा होगा, मतलब 2022 में हो रहे, कब हो रहे, आपको क्लियर करना है। सोर्स टाइप क्या है, सोर्स नेम क्या है, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये ऑप्शनल है। सोर्स टाइप इज इम्पोर्टेंट, स्टार लगा इसलिए आपको कंप्लीट, पर सोर्स नेम जरूरी नहीं है। हाँ, किस सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ये सोर्स टाइप, सोर्स नेम देना जरूरी है, किस नेम बताया जरूरी नहीं है आपको। तो नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन आपको यह बतानी है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इंदौर में हैं, तो इंदौर में आप कहाँ पे इसको कर सकते हैं। वैसे समझ एग्जांपल, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी के अंदर कहीं ना कहीं TCS का कोई ना कोई सेंटर्स अवेलेबल होगा, या तो कॉलेज अवेलेबल जहाँ पे स्कूल कॉलेज जहाँ पे इनका हो गई होगा, है ना, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड डालना है और री इंटर पासवर्ड डालना है, दोनों डालना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, आपको उसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे उसका आंसर भी देना है, ठीक है। ये दिस द कैप्चा, आपको कैप्चा फिल करना एंड देन सबमिट। तो इतना आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका काम हो गया है, इसका मतलब आपने सबमिट कर दिया डिटेल्स। क्लियर है, इज इट क्लियर? इतना आपको कंप्लीट करने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ तक आपको पूरा फॉर्म भरना है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगी, आपके मेल आईडी पे टू द वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। वेरिफिकेशन से फिर वहाँ से आपको वापस से वेरिफिकेशन करना है एंड देन आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, BPS का ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। So this is in this video I have already complete 2 sections, syllabus and the registration part. So I am best of luck all the fresher students जो related to commerce, science and art. Please apply for in the TCS, and you can give TCS will give good opportunity for you. Thank you very much.